हाय, व्हाट्स हैपनिंग। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो वे आर एनीवे। दैट्स ऑलराइट, वी विल डू रेडॉक्स रिएक्शंस। और अगर आपने मेरे थ्योरी सेशंस अटेंड नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में सब थ्योरी सेशंस के लिंक्स हैं एज यूजुअल। सो व्हाट आर वी गोना डू। हम लोग थोड़े बहुत नीट में जो पुराने ईयर के सवाल आए थे वो करेंगे, और उसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस भी करेंगे एज यूजुअल। विल गो थ्रू द एनसीईआरटी फर्स्ट। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 पहले बताइए कितने कंफर्टेबल हैं आप रेडॉक्स रिएक्शंस के साथ। आई थिंक ये जरूरी चैप्टर इसलिए है क्योंकि इट यूजेस मोल कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स, और ऑल्सो यही चीजें इलेक्ट्रोकेम में फिर से अप्लाई होती हैं। वेल, बट या बिफोर वी स्टार्ट यू कैन हियर मी एंड सी मी, वो सब चीज ठीक है। आई एम श्योरली डेफिनेटली वेयरिंग द माइक, आई चेक्ड। या, हे चेरी ब्लॉसम, हाउ यू डूइंग? मेरी आवाज साफ आ रही है? एबल टू हियर मी एंड सी मी क्लियरली, राइट? ऑल दैट्स फाइन, कूल। So how confident are you about this whole mole concept thing? Yeah, that's like a question that I wanted to ask you guys. Like, on a scale of 1 to 10, are you like really confident, thoda bahut confident, not so confident, whatever it is? Just put a scale on it. Like a 1 to 10 scale on it. Where are we at? Look at this. We've covered so many of these things. Yeah, give yourself a pat on the back for having caught up most of these, if not all of them. I know some of you have seen literally all of these sessions with me live. A lot of you have seen this outside the live environment. That's all right. जैसा ठीक लगे आप देख लीजिए. That's a lot of sessions. All the way from here to here. बस एक बचा है हमारा P block 1. P block 1 बहुत chill session है. Yeah. So let's get started right away. Hey, Ritu, Pranjal, Amjad, Mahi, what's happening? What's happening? Good afternoon. Good afternoon. All right. Chalo, Shreya, what's up? Let's start with, well, the NCRT as usual, है ना? Look, where's the NCRT? Here is the NCRT. Okay, so redox reactions क्या बोलता है? Look at this first line. It looks like Master Shifu said this, right? Where there is oxidation, there is always reduction. बहुत सही बात है, बिल्कुल valid. They always happen together. इसलिए हम लोग उसको red ox बोलते हैं, right? Although sometimes we study them separately, yeah, half reaction electrochemistry, especially we say reduction, half oxidation, half etc. etc. But they must always happen together. And this is a central idea जिसकी वजह से आप बहुत सारे सवाल भी solve कर सकते हैं. देखिए, if reduction is happening, then you know कि okay, maybe it is an oxidizing agent because it gets reduced, so it causes something else to get oxidized. This basic thing like this, इस पे नीट पे सवाल आते हैं, theory bits. But what is oxidation? दो तीन definitions हैं. एक तो जो पुराने वाले स्कूल वाले डेफिनेशन ना, ऑक्सीजन का ऐड करना, हाइड्रोजन का रिमूव करना, और ऑक्सीजन जैसे किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड करना इज आल्सो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को हटाना लाइक हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ये बेसिक्स प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट तो कर दिया बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आई रीड इट। बट आपके और मेरे लिए अभी राइट नाउ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द एलएचएस ऑफ द इक्वेशन, दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, दैट इज रिडक्शन। If they are on the RHS, that means ki oxidation. What do I mean? Say something like this: Cu2 plus 2 electrons. This is reduction. You know this already, but कभी कभी ये वाला part students, you know, it slips their mind. ये right hand side पे है, ये oxidation हो रहा है. This is the same thing. हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं. Confident, lovely, Amjad. Not so confident, says Cherry. Pranjal, all right, all right. Good afternoon. 10 on 10, Pranjal. वाह बेटा, lovely. I'm great. Mai, how are you doing? Please increase speed. कैसे? वो 2x करे क्या? Shall we make it 2x? Yeah. Good afternoon. It's all right, Teetsraj. All right. So, Pranjal, come back after 10 minutes if you feel this is slow. We're going to go through the NCRT, right? That's what we do. Because NEET NCRT के बिना कैसे करोगे? We'll do solve questions. If you're here to solve questions, 5-7 मिनट बाद आइएगा, ठीक है? We'll go through NCRT right now. So, now, what is an oxidizing agent? What is a reducing agent? Reducing agent is something that it itself gets oxidized, right? है ना, यहाँ पे लिखा है सोडियम गेट्स ऑक्सीडाइज एंड इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ इसका फील तो आप you can get that using the electropotentials, right? Electropotential specifically, which we'll do at the end of this session. उसके अलावा यहाँ पे क्या है? Yeah, this concept of reduction and oxidation is always relative. मतलब कि अगर एक रिएक्शन में ये स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि हर रिएक्शन में वो ही रिड्यूस होगा, कभी कभी ऑक्सीडाइज भी कर सकता है. सो इट इज अ कॉम्पिटेटिव थिंग, ओके, जस्ट लाइक योर एग्जाम्स. सो कॉपर और जिंक के बीच में जिंक रिड्यूसेस कॉपर, कॉपर और सिल्वर के बीच में कॉपर विल रिड्यूस सिल्वर. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टेंडेंसीज होती है. दैट यू डू इन डिटेल इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसलिए कुछ लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करता है रिडॉक्स रिएक्शन, गैसियस स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, और ये सब चैप्टर्स, राइट? खैर, बट सबसे जरूरी है रिडॉक्स रिएक्शन फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट हियर? ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है,
दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर रिड्यूस होता है तो दैट इज रिडक्शन। यहाँ यू कैन सी 0 to -2 जा रहा है, दैट इज रिडक्शन। 0 to +1 जा रहा है, ये। और बाय द वे, हाउ डू आई गेट टू नो +1 -2 क्या क्या है? देयर आर सम रूल्स। आउट ऑफ दीज रूल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है, बट if it if it collides, if it forms elements with really electropositive, if it forms compounds with really electropositive elements, तब उसका -1 भी होता है। डोंट मक कि हमेशा +1 होता है, राइट? ये बेसिक चीजें ध्यान से करिए। फ्लोरीन हमेशा -1 होता है, या इवन इन कंपाउंड लाइक OF2, राइट? इवन इन दैट इज -1। O2F2, OF2 एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब कंपाउंड जो बनते हैं, कहाँ है ये? या राइट हियर। इन दोनों में देखो ऑक्सीजन के टेक्स पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन हमेशा -1 होता है। बाकी जो हाइड्रोजन है, ऑक्सी एसिड, उन सब में पॉजिटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं। वी हैव डन ऑल दिस इन थ्योरी, बट हो सकता है सम ऑफ यू थ्योरी सेशन आपने शायद न देखे हो, तो इसलिए मैं 1-2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख के आराम से उसको पढ़ भी सकते हैं, इफ यू गाइस लाइक, राइट? देयर आर जस्ट 4 सेशंस, यू विल एस रिडॉक्स जस्ट विद दैट। देयर आर सम डेफिनेशंस ओवर हियर दैट आर रियली इंपॉर्टेंट, राइट? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट, उसमें डायरेक्टली सवाल भी आ सकता है। these things are okay, right? Won't spend too much time on this, we'll just do questions। ये सब जो different types हैं, disproportionation, decomposition, combination, etc. disproportionation हम लोग बात करेंगे, वो मैंने गलती से बोला, but a lot of example here, ये कुछ मक करने वाली बात नहीं है। you got to do this from the first principles। distraction बहुत है, क्या करें महाराज? that caught my attention। yes, Shreya asked me a question while I was saying this। ओके, आई न्यू ये चीज जो है सब लोगों को पक्का नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा था। ओके, लेट अस टॉक अबाउट श्रेया सेइंग, मतलब राइट साइड में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। ओके, वी विल राइट दैट, डोंट वरी। श्रेया, आई हैव सीन योर कमेंट, आई विल एड्रेस इट इन जस्ट अ सेकंड। राज, आई विल एड्रेस योर कमेंट व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। अभी हम लोग एनसीईआरटी के बात कर रहे हैं, आई विल एड्रेस बोथ योर क्वेश्चंस। हां, मैंने फिक्स कर दिया, थैंक यू निगम, थैंक यू। इज अ वियर्ड वेबकैम का सॉफ्टवेयर का चक्कर है, इट आई फिक्स इट, थैंक यू सो मच। सी दिस हियर, कौन पूछ रहा था? श्रेया, यस राधिका, आई फिक्स्ड इट। श्रेया, यू आर आस्किंग मी, मतलब राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। देखिए, इफ आई राइट समथिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो मतलब ये वाला पार्ट, LHS ऑफ अ रिएक्शन, मतलब ये है रिएक्टेंट, है ना? अगर राइट हैंड में है मतलब है प्रोडक्ट। अब लग रहा है ये तो ऑब्वियस चीज है, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज देखो, I can write this as 2 electrons on the RHS, or I can write this as 2x minus 2 electrons giving me x2। मैं ये लिख सकता हूं, बट ये लिखने से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लस एंड माइनस वी विल ऑलवेज राइट प्लस, ठीक है? एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो, जो x माइनस है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, राइट? मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, है ना? दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। सो गेन ऑफ लोन लोग बोलते हैं ना, LOAN, लॉस, जो भी है तुम लोग पढ़ लो ये सब। रिडक्शन में होता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन में होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ये मक करने के लिए अच्छा है, बट इन एन एक्चुअल रिएक्शन यू विल राइट इट लाइक दिस, राइट? दिस इज ऑक्सीडेशन। इसलिए मैंने आपको एक ऑक्सीडेशन, इसलिए मैंने एक ऑल्टरनेटिव चीज आपको बोली थी कि देखो, अगर RHS में आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मतलब दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट सिंपल है। यही मैंने बोला था। श्रेया, आई होप यू अंडरस्टैंड। राज भाई, आपका भी हम लोग सवाल थोड़ी देर बात करेंगे, when other rest of friends are solving question, we'll talk about that। Disproportionation reaction बहुत ही interesting चीज है। We'll spend a minute on this specifically। Yeah, I know we are 8 minutes past, I've got a couple of more minutes, right? I'm going to spend one of that entire minute just talking about disproportionation। Disproportionation में same species ऑक्सीडाइज होती है और रिड्यूस होती है, मतलब कि मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 0, और कुछ हायर और कुछ लोअर होते हैं RHS में। सो LHS हैज द मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर एंड RHS में है लोअर और हायर। ना दिस इंपॉर्टेंट, राइट? रेडॉक्स कपल दोनों साथ में होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए उतने ही गेन होंगे। यू सी व्हाट आई मीन? जितने लूज हुए उतने ही गेन होंगे। सो अगर इसका मुझे n फैक्टर निकालना है, कैलकुलेट ओनली फॉर वन, नॉट फॉर बोथ। इसका मतलब नहीं समझ में आया तो मेरा सेशन देख लेना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ध्यान से करने वाली चीज है, डोंट डू एनी रैंडम फॉर्मूले फॉर ऑल ऑफ दिस। n फैक्टर निकालने के लिए, n फैक्टर निकालने के लिए फोकस ऑन ईदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों साथ में खिचड़ी मत करो। ऑब्वियसली फिर 0 आ जाएगा तुम्हारा, राइट? अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों करोगे, यहां इलेक्ट्रॉन गया वहां गया, खत्म, it gets cancelled out। खैर, anyway, be careful about calculating n factor when you do disproportionation। अगर वो याद नहीं है कैसे करते हैं, मेरे थियरी सेशन में देख लेना, ठीक है? ऑल राइट। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर क्या मतलब है? क्योंकि देखो, यहां पे एक्चुअली
कुछ का 0 होता है, कुछ का +2 होता है. If you take all of them together, then you get a fractional oxidation number, which is an average, right? Average है. मतलब कि कुछ दाल में कुछ काला है. It's not all the same oxidation number. कुछ प्लस माइनस हो सकता है, बीच में हो सकता है. If it bonds to itself, there is no electronegativity difference. Okay? There is no delta En. Delta En is equal to 0. इसीलिए यहाँ पे जो है इसका जो है कोई कॉम्बिनेशन, इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इसको 0 लिखते हैं. Shall we start doing some questions? The last part and the most important part, like second part of this, is the balancing of redox reaction. There are some steps. ये सब तो आप familiar हैं already. We'll do some questions and we'll go over this. I would like to go through the NCERT, but I will take a 10-15 more minutes to go through all of these steps. आप लोग उसको करना, theory में देख लेना. We'll solve some questions, उससे आपको समझ में आ जाएगा. चलो, let's start with some questions. नॉर्मेलिटी का आइडिया ऑल्दो आप इसमें नहीं है डायरेक्टली एनसीईआरटी में, बट इफ यू यूज दिस योर लाइफ विल बी अ लॉट मोर इजियर. ठीक है. एंड मोर अबाउट ऑल ऑफ दिस लास्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, दिस टेबल स्पेशली इज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. प्लीज सारे सब्जेक्ट सॉल्व करिए. इसमें अराउंड 30 सवाल है, राइट? 30 क्वेश्चंस. सॉल्व देम ऑल एंड यू विल एस नीट. ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस. प्रांजल है, सो गए? आर यू अराउंड? एवरीबॉडी एल्स प्लीज वेक अप. Oh, by the way, if you're looking for my other sessions and not just the Redox ones, here is a link to all my sessions. Yeah. Okay. Cool. What's up, Yuvraj? Yuvraj with a U. That's a new one. I've never seen a Yuvraj with a U. I'll be honest with you. ठीक है. पहला सवाल डायरेक्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. Let's try it out. The oxidation जितना लूज हो इतना गेन होगा. Absolutely right. Absolutely right. आपको कुछ समझ में नहीं आता है प्रवीण जी, तो आपको फिर एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी. और क्या करें? एनसीईआरटी पढ़िए तभी समझ में आएगा. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4 3- P4O10 और P2O7 4- क्या है फॉस्फोरस का? ट्राई करिए. 3 सब्सटेंसेस हैं. क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है? प्रवीण जी, आई फील फॉर यू. पढ़ाई इज द ओनली वे आउट. समझ में नहीं आ रहा है तो बुक्स हैं आपके पास, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, किताबें हैं. वीडियोस तो सप्लीमेंट्री होते हैं, बुक्स सबसे जरूरी है. अच्छी बुक है आपके पास एनसीईआरटी. आपको और बुक चाहिए, आई कैन टेल यू. हमारे वीडियोस तो है ही. एंड राइट नाउ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. इफ यू वांट टू सी थ्योरी सेशंस, मैंने आपको लिंक्स दे दिया, यू कैन चेक देम आउट फॉर थ्योरी सेशंस. वर्द्रा गांधी, हाय. आई डोंट थिंक आई हैव सीन यू हियर बिफोर. थैंक्स फॉर द आंसर. बहुत जल्दी आपने दिया. वर्द्रा निगम आर बोथ सेइंग ऑप्शन बी. व्हाट डू यू थिंक? ओह वाओ, लॉट ऑफ यू आर सेइंग बी. पंपा, शालिनी, माही, बहुत लोग थे, मतलब सब शांत बैठे थे. ठीक है. राधिका, तीतराज, अरे वाह, अरे वाह, बहुत लोगों को आंसर यही मिल रहा है अभी. राज ऊपर क्या पूछ रहे थे? आई फॉरगॉट. डिस्ट्रैक्शन बहुत है, क्या करें? डिस्ट्रैक्शन के लिए अपने फोन का स्क्रीन टाइम कम करिए, बाहर घूम के आइए. आई जस्ट मेड शॉट ऑन दैट फॉर द जेई फोक्स, कि भाई इट्स हाई टाइम यू गाइस फिक्स योर रूटीन. उनका एग्जाम 20 दिन में है बेचारों का, तो बहुत टेंशन में, बहुत पैनिक में है लोग. वही मैंने बोला उनको, अपना रूटीन ठीक करिए, सब ठीक हो जाएगा. नेगेटिव मार्किंग सब कुछ ऑल लिंक्ड टू योर माइंड. तीर्थराज, Yuvraj also says B. Okay, sweet. Everyone says is B. Let's see कैसे, how do you guys get to B? I think ये वाला डायरेक्ट है. ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. इसमें कुछ फैसिनेटिंग या फंकी नहीं हो रहा है. इन द सेंस दैट ओके, हो सकता है हो रहा है. लेट्स सी. 1 2 3 मैंने इसको नंबर किया. ओके, एंड आई हैव रिटन डाउन द इक्वेशंस फॉर फॉस्फोरस. एक यहाँ पे P है 4 × -2, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इज इक्वल टू -3. पहला वाला इक्वेशन. दूसरा वाला 4P plus 10 × -2 is equal to 0. Now, इस वाले में you got to be a little careful कि it could give you a junk value. But luckily, this is okay. यहाँ पे कोई peroxide linkage नहीं लग रहा है. या इधर absent है peroxide linkage. Looks like it. कैसे मालूम है? क्योंकि अगर P, if I got P greater than 5, then that would be wrong. Right? 5 से ज्यादा होने के चांसेस फॉस्फोरस के नहीं है. Not that I know of. अगर होते हैं तो मालूम नहीं. 5 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बेचारे के पास. खैर, अगर 5 दे दी तो और क्या करेगा? सो बी केयरफुल अबाउट दिस लास्ट वन. 14 माइनस, हाँ, तो सब में 5 ही दिख रहा है. राइट? 5 से ज्यादा नहीं हो सकता. दिस +7 वाला जंक ऑप्शन. यस, ऑप्शन को आप काट दीजिए. ऑप्शन डी भी आप काट दीजिए. सो इट्स ईदर ए और बी. ठीक है. तो लकीली यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं. आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड बी. यू कैन सी द कैलकुलेशन राइट ओवर हियर. नीट इंस्पायर्ड बन नहीं रहा है. यू पिंग मी ऑन आई टीच कैम डूड. If you want to talk about a specific question that is different from what we are doing, if you have a theoretical doubt, I can take it. If you want me to solve questions, it breaks the flow of what we have planned. तो आप मुझे पिंग करिए यहाँ पे on either Telegram or on Discord, and I'll try and help you out with whatever you need. ठीक है?
बट थोड़ा एफर्ट भी लगाइए. इफ यू आर पिंगिंग मी एनी ऑफ दीस प्लेसेस, शो मी योर वर्किंग और व्हाटएवर एंड आई विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर. इस वाले का आंसर था ऑप्शन बी. गुड जॉब, वेरी इजी. या हाउ अबाउट दिस वन? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन सीक्वेंस इन Br3O8? इन सीक्वेंस मतलब कि अगर इसको बोल दें 1, 2 और 3, तो रिस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ब्रोमीन एटम का? आई हैव हेल्प्ड यू आउट अ लिटिल बिट बाय गिविंग यू द स्ट्रक्चर. अगर मुझे पूछना होता आपसे सवाल तो आई कुड हैव आल्सो जस्ट नॉट गिवन यू स्ट्रक्चर और बताओ. दैट वुड नॉट बी फेयर, राइट? बिकॉज नीट में इतना नहीं पूछा था, इसलिए ये भी आई डोंट थिंक विल एवर कम इन नीट. बट थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हम लोग करते हैं बिकॉज वी हैव डन दिस. इसको कैसे करें हमने आपको सिखाया मैंने थियरी सेशन में. अगर आप नहीं थे तो डोंट वरी, वी लुक एट हियर अगेन फिर से, बट ट्राई करिए. अरे वाह, लगता है ये सब मेरी क्लास में आए थे, फिर ऑलरेडी दे नो हाउ टू डू दिस. ओके, शालिनी, निगम, भद्रा, माही, तीर्थराज, युवराज are all saying B. बढ़िया, बढ़िया. Looks like a lot of you have figured this out already. Radhika, that's lovely. How do you guys get to this answer? Can you tell me, since you know how to solve this, कैसे किया आपने ये वाला? मुझे थोड़ा बताइए और अपने दोस्तों को भी बताइए who are watching this live and haven't figured out yet, और फिर बाद में भी देख रहे हैं उनको नहीं समझ आ रहा है इसको कैसे करें. How did you guys come with the answer? Do you want to tell me in the chat? Number these guys, right? 1, 2 and 3 वो पहले करते हैं, ठीक है. तो बेसिक आइडिया क्या है? आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखिए. ओके, नाउ बिटवीन ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इफ यू लेट मी ओपन अप माय फेवरेट साइट, होल्ड ऑन. पी टेबल, अरे ये क्या हो गया? एक सेकेंड, दिस गाय इज स्टक. ptable.org org. Okay, hold on. Here it is, right? And let's go to electronegativity. And यहाँ पे है ऑक्सीजन और ब्रोमीन. So bromine की electronegativity is 2.96, oxygen is 3.44. मे भी आपको ऑलरेडी मालूम था, you didn't need this exercise, but मैं अपने संतुष्टि के लिए मैंने ये किया इसको, ठीक है. So bromine is definitely less electronegative than oxygen. So the polarity of this bond is going to be like this. मतलब this, since यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, there are two double bonds, both of which will contribute to a +1 to this bromine, and hence इसका हो जाएगा +2. And oxygen gets a -2 oxidation number. ये मैंने आपको सिखाया था कि स्ट्रक्चर से कैसे करते हैं. Now if you figured that part out, number of bonds exactly Madhumita. Thank you. Shreya says oxygen, okay. All right. चारों तरफ ऑक्सीजन है, उसके -2 है. Okay. Correct. Exactly. But -2 क्यों है? Because I'm comparing electronegativity between bromine and oxygen. That's the reason that you do this, right? Because it's not an ionic bond. Right? These are all covalent bonds. But फिर भी हम लोग ये कर सकते हैं because there is a difference in electronegativities. अब इसका अगर +2 हो गया, तो बाकी दो के भी +2 हो गए. ब्रोमीन का कंट्रीब्यूशन, राइट? सो दिस इज +6, सिमिलरली हियर +6, हियर +6. नाउ इसी से लगता है आंसर मिल जाएगा. हाँ, इसी से मिल गया आंसर भी. बीच वाला +4 क्यों है? दिस इज इंटरेस्टिंग. बीच वाला +4 इसलिए है क्योंकि यहां पे अगेन आई हैव सेम +2 और +2. बट व्हाट अबाउट दीज गाइस? इन दोनों का क्या करें? From what your logic is, hey, Hare Krishna sir, how are you doing? From what your logic is कि ब्रोमीन मतलब ऑक्सीजन की वजह से +2 हो जाते हैं. व्हाट अबाउट दिस ब्रोमीन थिंग? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट? इन दोनों के बीच में देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड हेंस इनका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं. मतलब कि दीज बॉन्ड्स आर लाइक ओके व्हाटएवर, दे डोंट रियली कंट्रीब्यूट एनीथिंग, तो इसलिए 0 बोल सकते हो. व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इसका ये मतलब है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है. दे आर इक्वली शेयर्ड थियोरेटिकली स्पीकिंग. आई नो इट मे बी मे नॉट बी, व्हाटएवर, थियोरेटिकली स्पीकिंग यही है. उसका ये भी मतलब है कि ये जो इनके जो बॉन्ड्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन. दैट इज आल्सो, इसलिए यहां पे है डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस यहां पे. whereas इन दोनों के बीच में देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. समझ रहे हैं, राइट? दिस इज व्हाई यू गेट +6, +4 एंड +6. वो आपका ट्रिक बहुत अच्छा था कि ऑक्सीजन का -2 ही होगा. ठीक है, दैट्स गुड, वो भी ट्रिक चलेगा. बट मेन रीजन इज दिस, ताकि आपको कोई भी स्ट्रक्चर बना सके. गुड जॉब, दिस वाज द राइट आंसर. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? ये तो नीट का प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये सब लोग 30 सेकंड में कर लोगे. I'm gonna put a timer to this. कहां गया मेरा फोन, टाइमर वाला फोन? Here we go. What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? You have CH4 plus 4Cl2 giving you CCl4 plus 4HCl. इसमें जो है क्या है चेंज ऑक्सीडेशन नंबर का? Your time starts now. 30 seconds timer please. There you go. शुरू करिए इसको. आदिति जी बताइए. All right, yes, बीच में 0. Absolutely.
युवराज इज आस्किंग इफ आई एम फ्रॉम आकाश और बायजूस. यार लोगों में दोनों लिखा है तो आई गेस आई एम फ्रॉम बोथ. युवराज सेज आकाश बायजूस, राइट? I'm in Bangalore. That's what you're asking, right? We are the Akash digital part of things. Yes. Vardra. Vardra is on fire, huh? Vardra, Nigam, Piyush, Shalini, Radhika, Mahi, Shreya, Madhumita. Wow. 30 seconds के अंदर सब लोगों ने बताया. In fact, for you, it's 20 seconds because मेरे बोलने के 10 सेकंड बाद आपको पता चला कि मैंने टाइमर शुरू किया, which means this also will be 10 seconds later, but whatever. Yeah, good job, good job. Aditi, Madhumita, Ritu, Shreya are all saying that the answer is C. Looks like you all got it figured out. Absolutely. Same concept यहाँ पे भी use होता है. Okay. Although you know for sure यार कि हाइड्रोजन का तो हमेशा +1 ही होता है. But even if you want to do from first principle, this is the dipole moment का direction. एंड ऑल्सो यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसका हो गया जो है -4. मैंने सही लिखा उल्टा लिखा, रुको, हाँ सही लिखा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, सो -1 टू ईच ऑफ देम, -4 यहाँ पे हो गया. यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में उल्टा हो जाता है साइन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट, राइट? कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, ऑब्वियसली क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका +4 हो जाता है. हेंस दिस इज द आंसर, -4 to +4. गुड वर्क एवरीबॉडी. सिंपल सा सवाल. चलो, let's raise the stakes a little bit. Which of the following is true about the given redox reaction? SnCl2 plus 2 FeCl3 gives you SnCl4 plus FeCl2. यहां पे हो क्या रहा है? वो जो टिन है +2 और +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. आयन भी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2 +3. तो मैंने आंसर आपको दे ही दिया है मोर और लेस, बट यू ट्राई इट आउट नाउ. सी व्हाट आई सेड, उसमें उसी में आंसर छुपा हुआ है. ट्राई करिए. नीट से Cl2 का सर, समझा नहीं मैं. नीट इंस्पायर्ड जी, व्हाट डू यू मीन? कैन यू जस्ट रिपीट व्हाट योर क्वेश्चन और योर स्टेटमेंट इज? मतलब आप किस चीज की बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं. Cl2 का सर, पुराने वाले कुछ बात कर रहे थे क्या? पुराने क्वेश्चन में Cl2 का था. ओह अच्छा, होल्ड ऑन. Cl2, अच्छा यहाँ पे 0 था, श्योर, 0 से -1 हो रहा है. या दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड दिस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. यस, -4 to +4. अगर आप वो बोल रहे थे देन यस, Cl2 का 0 था. सही बोला आप. निगम सेज ए, माही सेज ए, पंपा सेज ए, श्रेया सेज ए. पिछले सवाल, हाँ मैं समझ गया. नीट इंस्पायर्ड. गुड जॉब, गुड जॉब. राधिका सेज ए एज वेल. good. You guys have a strong eye for detail. But इस सवाल में the number of people giving me the answer are fewer than the last time, although the number of people watching is the same. वही चेक करा था. All right, सही है. Radhika, Shalini, Saloni are all saying A. Okay, Tirthraj also saying A. सही है. हाँ, so what do we do? I think you all figured out the answer. So let's go and solve it for the folks who are not watching this live, right? You're going from +2 to +4. मैंने बोल दिया था आपको. और यहाँ पे जा रहे हैं +3 से +2, which is like you can also guess it. अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते, अगर ये +2 से +4 जा रहा है, then this must get reduced. No, हाँ, ये this must get reduced, or this gets oxidized and the other chap gets reduced, right? अगर ये हो रहा है oxidize, तो this must be reducing agent. This is getting reduced. This must be the oxidizing agent. This मतलब this FeCl3. Okay. आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा. अगर FeCl2, अगर मैं एक और ऑप्शन देता, FeCl2 और एक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं देता, तो मे बी देन यू वुड गेट कंफ्यूज्ड. बट यू हैव टू सी व्हाट यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद. ठीक है, इसलिए द आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी SnCl2 is getting oxidized, FnCl3 is actually acting as oxidizing. But let's look at the other option. FeCl3 is oxidized. That's not correct. Yeah, it's going from, it is +3 से जा रहा है +2, so that is getting reduced. Acts as oxidizing agent. This part is correct. Acts as oxidizing agent correct, but पहला वाला part ही गलत है. What about this? SnCl2 is reduced. नहीं भाई साहब, this is going from +2 to +4. ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये वाला पार्ट गलत है. Acts as oxidizing, no, this acts as reducing agent. हमने reduce कर दिया था. FeCl3 oxidized, नहीं, not correct. SnCl2 acts as oxidizing, नहीं. अरे ये वाला तो आसान हो गया. ये वाला सवाल आसान हो गया. इसको थोड़ा मुश्किल बना सकते थे. खैर, good job everybody. Good job. Yes, absolutely. Yeah, निगम. Now, in which reaction is hydrogen acting as an oxidizing agent? 4 ऑप्शन है, ट्राई करिए. ये वाला भी हो सकता है. I feel this is doable. Just be careful about this. हाँ, जल्दी मत करिएगा.
वी गॉट 4 रिएक्शंस। आयोडीन के साथ रिएक्ट करके दे रहा है HI, लिथियम के साथ दे रहा है LiH, नाइट्रोजन के साथ दे रहा है अमोनिया, सल्फर के साथ दे रहा है H2S। In which of these is hydrogen acting as an oxidizing agent? Oxidizing agent मतलब भाई साहब खुद हो रहे हैं रिड्यूस। उप्स, दे दिया आंसर है ना? ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। So how do you guys like this whole way of doing things कि पहले थोड़ा बहुत theory करें, then you do questions? What happened to the guy who said he was 10 or 10 confident? सवाल नहीं करना था भाई साहब, बोल के जाना था, भाग जाना था, प्रांजल कहाँ गया? So this way of doing stuff, like what do you want me to do next? Because we are almost at the end of this series, quote unquote, right? एक आइडिया था एनसीईआरटी की चीजें करें, बट बिफोर वी डू दैट मैं सोच रहा मे बी फरवरी वी कैन स्टार्ट डूइंग एनसीईआरटी स्टफ। उससे पहले व्हाट डू यू वांट टू डू जस्ट फॉर लाइक 2-3 सेशंस बीच में? कुछ है आपके मन में? व्हाट वुड यू वांट मी टू डू? कौन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है? ओके, नीट सेज गुड आफ्टरनून चंद्रहास, हाउ यू डूइंग? माही सेइंग बी, पंपा सेइंग बी, निगम, अच्छा पुराने इस वाले, अच्छा इस वाले में, ओके, निगम, सलोनी, पंपा, माही, संदेश, श्रेया, राधिका, तीर्थराज, शालिनी आर ऑल सेइंग बी। अरे वाह, सबने पकड़ लिया। Okay, good job everybody. ChatGPT, I hope you didn't take ChatGPT's help for this one. Jashan, yes, NEET inspired. अरे आफ्टरनून से इवनिंग हो जाएगा चंद्रहास, अब इतनी बार गुड आफ्टरनून बोलेंगे तो yes, this feels like is the right answer to me. But what's the idea? H, if it अगर ये act कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, मतलब it must get reduced. Specifically, I think you want to say H2 gets reduced. H2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। क्यों? Let's write down the reaction, right? देखो H2 plus I2 यहाँ पे है, H2 plus Li है, H2 plus N2 है, H2 plus S है, ठीक है? In all of these cases, what are we? ऑक्सीडेशन नंबर बदलाव क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे 0 से +1 है, this is oxidation, this is reduction, 0 to -1, this is oxidation, this is oxidation again. So the answer must be B because यहाँ पे हो रहा है reduce oxygen, right? Hydrogen हो रहा है reduce, right? So this is the answer, which is option B right here. All right, Chandrahas, काफी गुड हो गई आफ्टरनून। एक सवाल का जवाब भी दे दो। अगला सवाल, which of the following reactions is disproportionation? अंग्रेजी इसकी ऐसी है बिकॉज नीट का PYQ है। वाह चाचा चौधरी, माइंड एज फास्ट एज अ कंप्यूटर। एनीबॉडी नोस चाचा चौधरी कॉमिक? साबू या कोई हुआ करता था उसमें, राइट? which of the following reactions is a disproportionation reaction? You got 4 options. पहले में copper plus becomes copper 2 plus copper, दूसरे में MnO4 2 minus, MnO4 minus और MnO2, तीसरा वाला MnO4 minus ही है, gives you MnO4 2 minus, MnO2, फिर MnO4 minus और react कर रहा है 2 Mn2 plus। अच्छा, इसमें बस definition वाला concept है, right? You need to know what the definition is of this. इसकी एक बार definition मालूम होगी, then you can figure stuff out from there. Definition का क्या है? Yeah, you have a middle oxidation number and it goes to one higher and one lower. For our purposes, this is enough. This is enough. Yeah. All right, Mahi. Thanks for your feedback. All right, Mahi. Cool. Sure. Thanks for that, Mahi. I'm just reading your comment. Okay. Oh, NEET ने जवाब बदल दिया. ठीक है. Shalini says C. Sandesh says A. Pampa is on C. Mahi GPT Sahib is also C. Shreya is C. Jashan is also on C. Sandesh changed their answer to C. अच्छा, A हट गया, एक वो जो था वो A हट के C बन गया, ठीक है. Madhuvendra also saying C. What is C? C is A and B only. अच्छा, ठीक है. देखते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन का डेफिनेशन क्या है. मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर है LHS में और RHS में होगा एक हायर और एक लोअर. मतलब कि एलिमिनेट कर सकते हैं क्या इसको हम लोग? एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट कर देते हैं, डी को एलिमिनेट कर देते हैं. देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, मिडिल नहीं है, और यहां पे सिर्फ एक है. सो यू हैव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पे और यहां पे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है. तो आप डी को तो एलिमिनेट कर सकते हो. डी को एलिमिनेट कर दिया तो आपने ऑप्शन ए और बी को भी एलिमिनेट कर दिया. सो यू हैव बिटवीन डी एंड सी टू फिगर आउट. ओके, ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ. ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट्स. यहां पे +1 +2 और 0. अच्छा, ये एक कम और ये एक ज्यादा. ये पेट कटा ज होगा, राइट? पेट कटा ज हो सकता है क्या? खैर, जो भी है, राइट? सो दिस इज डेफिनेटली डिस्प्रोपोर्शनेशन. ए है, ओके, वेल नो सरप्राइज, ए है. व्हाट अबाउट बी? यस, इसमें भी +6 से आप जा रहे हैं +7 और +4. दिस इज +1
एंड दिस इज -2। ठीक है, ये भी है, तो ए एंड बी आर डेफिनेटली करेक्ट। व्हाट अबाउट सी? सी में यहाँ पे ध्यान से लिखना, दिस इज +7 नॉट +6, यहाँ पे है +6 और ये है +4। ठीक है, सो या सी इज नॉट द आंसर, एंड इसीलिए कभी कंफ्यूजन आपको, बट लुक्स लाइक नोबडी हैड द कंफ्यूजन, राइट? समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट मिक्स्ड अप कि इसको भी बोल सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, बिकॉज टेक्निकली ये टूट रहा है और समथिंग, बट सिंस नाउ इफ यू सेड डी, आई डोंट थिंक यू हैव दैट, सॉरी, नाउ इफ यू सेड डी इज द आंसर व्हिच मींस सी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं है, तो एलिमिनेशन से हट गए, बाकी सब बचा कौन सा आंसर, व्हिच इज ऑप्शन सी। ऑलराइट, गुड जॉब संदेश जी। मैंने वही बताया आपको, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, तो मैंने उसका ब्रीफ में बता दिया कि इट्स मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलएचएस पे, और एक ऊपर और एक हायर होता है ऑन द आरएचएस। इफ यू वांट टू सी द एक्चुअल डेफिनेशन, वी कैन क्विकली गो टू द एनसीईआरटी एंड चेक इट आउट। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, यार संदेश पढ़ लो यार, देखो एनसीईआरटी के पहले पेज में लिखा है डिस्प्रोपोर्शनेशन, मुझे कहीं देखो बहुत डिटेल में लिखा है व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन। या एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वही मैं बोल रहा था आपको इसका थ्योरी। द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिव सब्सटेंस, द इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को मैं बोल रहा था मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड बोथ हायर एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट आर फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। मतलब कि एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करने चाहिए उसके। प्लीज यार इसको पढ़ लेना, ठीक है? एंड इस पे एन फैक्टर के सवाल नीट में आने के चांसेस कम है, बट आगे तो आई हैव टॉट यू दैट आल्सो, यू प्लीज चेक आउट द थ्योरी फॉर दैट। कूल, ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे चलते हैं। दिस वन इज इंटरेस्टिंग। नाउ थिंग्स आर पिकिंग अप, वी आर हाफवे देयर, थिंग्स आर पिकिंग अप। 2.68 into 10 power minus 3 mole of a solution containing an ion, not anion, an ion, a positive ion, An plus, required 1.61 and 10 power minus 3 moles of MnO4 minus for oxidation of An plus to AO3 minus in an acidic medium. What is value of N? N factor निकालना है। How do you guys do this? करो। Why am I crying? I don't think I was crying. Was I crying? I'm just dramatic, ChatGPT. अगला सवाल करते हैं। Saloni, which one? So, which question do you want me to repeat? Saloni, the disproportionation one or this one? Let me know, Saloni. While the rest of these guys start on this, let me know if it's the previous one. I'll do that. Saloni, we're asking कि disproportionation कौन से आउट ऑफ उन चारों में से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है? दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग, राइट? और डिस्प्रोपोर्शनेशन का वो तो थ्योरी तो है ही वो, राइट? डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब कि यू स्टार्ट विद द मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर, एक ऊपर एक नीचे जाना चाहिए। जेडीएलई में बहुत डिटेल में उसके बारे में चीजें हैं, बट दैट्स जस्ट अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, क्यों होता है वो? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कृपा से होता है, मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट या कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन, ऑक्सो आइसोटोप, सबका भी होता है। ठीक है, संदीप इज सेइंग 5। Saloni, are you talking about this question or last one? In this question मैं पूछ रहा हूं कि ये an प्लस में n की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि Cu 2 प्लस में ये 2 है ना, that's what we're asking for. How do you find this out? देखो, the change of oxidation number क्या होगा इसका, it will be 5 minus n, right, into some volume will be equal to जो भी इसका n फैक्टर है, MnO4 minus in acidic medium देता है Mn2 plus, तो that's going to be 5 into you know n factor into जो molarity है, moles है, sorry not molarity, moles जो भी है इसके, which is this times volume, and यहाँ पे भी होंगे moles. That's it. So what you got to do is n into V is equal to constant, which is what? Number of equivalents is constant. अगर आप चाहो तो मोल से भी कर सकते हो, बट इट्स सेम थिंग वेदर डू इट फ्रॉम मोल और फ्रॉम इक्वल, इट्स द सेम आइडिया। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं डी। ठीक है, इसके पहले वाला क्वेश्चन, चलो ऑलराइट। भारद्वाज जी, कैप्टन लकी जी, आप भी बोल रहे हैं सी। ठीक है, डू यू वांट टू टेक अ मिनट मोर टू डू दिस? निगम एंड माही आर सेइंग डी। ओके, सो इज तीर्थराज, अ लॉट ऑफ टेकर्स फॉर डी। लग रहा है वी आर स्प्लिट बिटवीन बी, सी एंड डी। श्रेया सेइंग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन। एन फैक्टर का डेफिनेशन कोई बता सकता है? श्रेया को हेल्प करेगा कोई? श्रेया, एन फैक्टर is the moles of electrons that react with 1 mole of the substance. इसकी डेफिनेशन ये है, ऑफिशियल डेफिनेशन ये है। ठीक है, फिर से बोलो, the moles of electrons that react with 1 mole of the compound, ion, जो भी स्पीशीज बोल लेते हैं। So MnO4 minus
becomes Mn2 plus. Oxidation state goes from +7 to +2. तो बदलाव कितना हुआ, मतलब +5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल MnO4 माइनस के साथ, एन फैक्टर हो गया इसका 5। दैट्स ऑल। फॉर सलोनी, पिछले सवाल जो पूछ रहे थे, डिसप्रपोर्शनेशन का आपको डेफिनेशन अगर मालूम नहीं तो प्लीज पढ़ लीजिएगा। एंड आई हैव गिवन यू द जनरल डेफिनेशन दैट यू नीड टू नो टू बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में होगा मिडिल ऑक्सीडेशन नंबर, राइट हैंड साइड में होंगे एक ऊपर और एक नीचे। डिसप्रपोर्शनेशन मतलब अगर बीच में +3 हो गया तो +4 चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे। कैसे? क्योंकि सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रही है। बाय द वे, डिसप्रपोर्शनेशन का सबसे फैंसी चीज यही है कि सेम स्पीशीज हो रही है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन फॉर अ सेकंड एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइसली। प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू कॉपर, Cu प्लस गिव्स यू Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसको कैसे बैलेंस करोगे? Literally just add them both. Just add both of these and what you get is 2 Cu plus gives you Cu2 plus plus Cu. अब देखो बन गया ये रिएक्शन, है ना? That's all. This is how you balance disproportionation reaction. बाकी को बैलेंस करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा, but just for Saloni's benefit and the other people who don't know what disproportionation is the same species getting oxidized and reduced. ठीक है? That's all it is. Okay, cool. इस वाले को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। श्रेया, डिड यू फॉलो? मैंने आपको बताया आपको एन फैक्टर क्या बोलते हैं, राइट? पंपा एंड शालिनी शालिनी सिंह सी एंड बी। लगता है थोड़ा सा इसमें डिसोनेंस है, आप लोग उस पर अग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से किया? कैन यू टेल मी हाउ डिड यू गाइस सॉल्व दिस क्वेश्चन? सलोनी, आई होप यू अंडरस्टूड दैट वन। मैंने आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन के बारे में बताया, सेम सब्सटेंस गोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑलराइट, ग्रेट। नाउ कैसे किया इसको आप लोगों ने? कैन यू टेल मी द प्रोसेस? क्योंकि आप लोग कुछ लोग बी बोल रहे हो, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी, मतलब कहीं तो कुछ कंफ्यूजन है। ओके, मे सम ऑफ यू आर राइट, सम ऑफ यू आर नीड टू वर्क ऑन समथिंग। कैसे किया? डी ही होगा, तीसरा बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, द मेन आइडिया इज इक्विवेलेंस इज सेम। ओके, क्या हो रहा है? Mn7 इज गोइंग टू Mn2, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, मतलब इसका एन फैक्टर हो गया 5, ठीक है? दैट इज फॉर श्योर। नाउ वंस वी डू दिस, आई हैव MnO4 में कितने मोल्स थे? 1.61। कितने इक्विवेलेंट होंगे? इनटू 5। कितने होंगे? मिली इक्विवेलेंट होंगे। व्हाई मिली इक्विवेलेंट? बिकॉज़ 10 पावर -3, 10 पावर -3, दोनों जगह 10 पावर -3 लिखा है। तो दिस इज सेम एज 1.61 मिलीमोल, और इक्विवेलेंट्स करने के लिए इनटू n फैक्टर विल गिव यू इक्विवेलेंट्स। एट इक्विवेलेंट्स इज गोना बी मोल्स इनटू n फैक्टर विल गिव यू इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स का क्या कांसेप्ट है? एक इक्विवेलेंट हमेशा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन इक्विवेलेंट, ठीक है? यू कैन फाइंड 10 other definitions, but this is the real definition, ठीक है? संदेश जी, किस चीज में कंफ्यूज है बताइए? अभी तो सवाल शुरू ही किया हमने, ठीक है? अगर आपने इक्विवेलेंट्स नहीं पढ़ा है देन मे बी हो सकता है आपको थोड़ी मुश्किल हो, बट वो भी विल सॉल्व ना। इक्विवेलेंट्स नहीं पढ़ा है, चलो नहीं पढ़ा है, ठीक है, करेंगे, फिर भी करेंगे। 1 मोल MnO4 माइनस 5 इलेक्ट्रॉन साथ रिएक्ट करता है संदेश, तो राइट लाइक दिस ना, 1 मोल MnO4 minus 5 mole electron reacts with, ठीक है? तो 1.61 into 10 power -3 will react with how many moles? इतना ही तो कर रहा हूं मैं। मैंने बोला concept of equivalence, but it is just unitary method. It's going to be 1.61 and 10 power -3 into 5 divided by 1. अब मैं इसी को बोल रहा हूं, you write 5 into 1.61 and you call it milli equivalent instead of equivalent. That's all I'm saying, ठीक है? I hope that helped. Now milli equivalent of इसके कितने होंगे? AO3 माइनस का 5 minus n is the n factor. क्यों? क्योंकि 5 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, या A plus 3 into -2 is going to be equal to -1. So A is going to be equal to +5, right? Okay, and then that is the final state. Initial कितना था? Initial was an plus, and I don't know this value of n, इसलिए मैं कर रहा हूं। So ये n फैक्टर हो गया इस स्पीशीज का, इनटू कितना? 2.68। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है 10 power -3 मोल विल बी इक्विवेलेंट। व्हाई एम आई डूइंग इन मिली इक्विवेलेंट वे? बिकॉज कोई भी रिएक्शन हो उसके मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे। देन आई हैव टू इक्वेट बोथ ऑफ दीस। आई गेट वन इक्वेशन, वन वेरिएबल। देखो, आई गेट दिस इज इक्वल टू दिस, या दे आर बोथ इक्वल। क्यों? क्योंकि दैट इज द होल डील, राइट? जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी से तो रिडक्शन होगा। अगर आपको मैथ से डर लग रहा है तो आप मेरी बात सुनिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव रिटन ऑल दिस। जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे ऑक्सीडेशन से, उतने ही तो जाएंगे रिडक्शन में, है ना? देखो, ऑक्सीडेशन विल फर्निश इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इससे होंगे रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, राइट?
Now those same electrons will cause reduction. इसीलिए मैं ये इक्वल कर रहा हूं. This is the theory behind why is it that N1V1 equal to N2V2. Why? It's because of this reason. ठीक है, cool. संदेश, उसके बाद आपने बोला नहीं कि अब कंफ्यूजन गया कि नहीं, अभी भी है. खैर, you just solve this a little bit, take it to the other side, you get n by 5 is equal to this, you get n approximately to be equal to 2. That's the answer. ठीक है, आगे बढ़ा जाए. Any doubts on this one? I told you guys, we're going to step it up a notch. थोड़ा बहुत मैथ्स करना पड़ेगा. रेडॉक्स में यही तो है. Any doubts? Anybody? कोई डाउट है बता दो. What time है लाइफ में? सैटरडे है, चिल है. I'll explain whatever you want related to this question or around these concepts. बताओ. What do you guys think? कोई डाउट है तो बताओ, please. Shall we move on to the next one? Sandesh, you good? Anybody else? Any doubts? Since a lot of you are saying B and C, the answer is 2. See, the answer can't be B because ये already 5 plus है. तो 5 plus, say 5 plus, that's not oxidation. So it needs to be lower than 5. Right? N has to be lower than 5. That's for sure. है ना? Cool. That's the first thing. So जिसने भी वो B बोला ना, थोड़ा चेक करो. मे बी आपको कुछ कैलकुलेशन करने से B आया आपका. But you have to cross check if what you are doing is right or not. हाँ? It has to be lower than 5. ठीक है, बढ़िया. प्रणाम अनुज जी, प्रणाम. लकी जी, क्या हुआ? रोना आ रहा है? थोड़ी बहुत मैथ से आप लोगों को रोना आ जाता है. It's all right, it's all right. You'll be fine. अगला वाला करते हैं. How many ml of 0.125 molar Cr3 plus chromium ions must be reacted with 12 ml of 0.2 molar MnO4 minus अगर रेडॉक्स के प्रोडक्ट से Cr2O72 माइनस एंड Mn2 प्लस. देखो, ये करने का तरीका एग्जैक्टली सेम एज द लास्ट वन. ठीक है, एग्जैक्टली द सेम. आप लोग ये वाला ट्राई करो. द रीजन आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस जो बिल्कुल सिमिलर हैं ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस मिल जाए. ये वाला ट्राई करिए. ट्राई करें अनुज जी, आप भी इसको कोशिश करिए. नो डाउट. गुड सलोनी, राधिका, ऑलराइट. तीर्थराज, गुड जॉब. बढ़िया बढ़िया. निगम, everybody else here, sweet. Sandesh, sweet. It's okay. No, सलोनी, हो सकता है कुछ कैलकुलेट किया, हो सकता है मैथ्स में कुछ आगे पीछे हो जाता होगा. तुक्का मारना तो अवॉइड करना चाहिए बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है ना इसमें. नेगेटिव मार्किंग में तो नहीं करना चाहिए. हाँ. How do we do this one? So, luckily, जो मैंगनीज है सब कुछ दिया हुआ है. एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं दिया है. डायरेक्टली दे आर सेइंग यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर. तो यू नो द एन फैक्टर ऑफ दिस डायरेक्टली, है ना? उसका एन फैक्टर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है और मोलैरिटी भी मालूम है. तो भाई और करना क्या है? यू हैव टू, यू विल डायरेक्टली गेट कितने इक्विवेलेंट होंगे इसके, किस चीज के, जो स्पीशीज रिड्यूस हो रही है उसके. यू नो द इक्विवेलेंट्स दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट्स जो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है. कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है? ये भाई साहब हो रहे हैं ऑक्सीडाइज. क्या है चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर? +3 to +6. सो एन फैक्टर उसका भी मिल गया. एन फैक्टर टाइम सेम चीज, वॉल्यूम यू डोंट नो. एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए. निगम सेज 32. ऑल राइट. देखो हो गया आप लोगों से. तीर्थराज, एक्सलेंट. वॉइस अप एंड डाउन. आई दिवाकर, मतलब अप आई अंडरस्टैंड, डाउन कैसे होगा? मेरा माइक इज वेरी क्लोज टू मी. देखो सही माइक है यार, यही माइक है. डाउन कैसे होगा? मैं तो चिल्लाता रहता हूं. सीरियसली, एनीबडी एल्स हैज एनी प्रॉब्लम विथ Divakar? And for that, you're gone, bro. I don't tolerate any bullying and absolutely nothing of the sort you're trying to do here, Divakar. Yeah? This is the only warning I'm giving you. I'm putting in a timeout. थोड़ी बदतमीजी की, you're out, bro. ठीक है? Okay, cool. राधिका, पंपा, सलोनी, शालिनी, ओके, सब लोग बोल रहे हैं डी. एक्सेलेंट वर्क. ऑल राइट.
सही है, looks like you figured it out. चलिए, we did this a lot quicker than the last one. Last question we spent about 10 minutes, 9 minutes. I'm completely fine with it. इस one में we did it less than 4 minutes. Excellent work. Excellent work. बहुत सही है आपने. देखो, n factor है इसका 5. ठीक है? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 2 माइनस नहीं, सिर्फ माइनस होगा. यहाँ पे गलती से 2 माइनस लिख दिया. Hold on. Let me just fix that quickly in the back end. By that I mean I'm going to just erase that जो मैंने लिखा है हाथ से. Hold on. पता नहीं 2 माइनस कैसे आ गया. अरे बाप रे. जल्दी जल्दी में लिख दिया. सब जगह लिखा है. Calculation is fine. I think previous question में लिख रहा था 2 माइनस, में भी 2 माइनस लिख दिया. खैर, 12 into 0.2 into 5 क्योंकि n फैक्टर दिया है. मिली इक्विवेलेंट क्रोमियम कितना होगा? V into 1.25 into 3. Why 3? Because you're going from Cr3 plus to Cr2O7. देखो, अगर उल्टा होता then you would have to do 2 into 3. ठीक है? Because 2 एटम है क्रोमियम के, बट सीधा है तो मतलब एक ही एटम है LHS में. ठीक है? What am I trying to say? Focus on species that you start with. Okay, to calculate the n factor वाला business. What do I mean? अगर Cr2O7 होता लेफ्ट में, then you have 2 atoms of chromium. In this case, that's not the problem. ठीक है? What we have done here is good. इसलिए n factor इसका 3 ही होगा, right? This is Cr3 plus going to Cr2O7 2 minus, जहां पे oxidation state इसका +6 है. So the volume that you get from here, this calculation is 32. You get 32. Let's do this math. 4 times 4 into 5 is 20. 22 is 4 by 0.125. Okay, मतलब 4 into 8 by 10. एक मिनट, 8 by 10 नहीं, into 8. Yeah, 0.125 is just times 8. ठीक है, cool. All right, because 1 by 8 is 0.125, right? So 8 by 1 is 1 by 0.125. यही मैंने मैथ यहाँ पे किया. ठीक है, 32 ml. Good job everybody. Lovely, lovely, lovely. सही है, बढ़िया. अगला सवाल देखते हैं. Hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reactions does not show oxidizing behavior? Does not show oxidizing behavior. देखो यार, जब भी हम लोग लाइफ में MCQ पढ़ाते हैं, in school they teach you, स्कूल मतलब कॉलेज में पढ़ाते हैं कि कैसे सवाल बनाने चाहिए. उसमें पहली चीज बोलती है कि never ever make a question which has not in it. That is a very bad question. बट क्या करें, कोचिंग में और नॉट फॉरगेट कोचिंग, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नॉट डाल देते हैं, तो ध्यान से पढ़ो. But when you are taught to make questions, they tell you specifically not to ever make a question जिसमें not शब्द हो, because your goal is not to confuse the student. But यार क्या करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं. This is a PYQ, ट्राई करो उसको. Moderately strong, which are the following reactions. मैं बस अंग्रेजी ठीक कर रहा था. सवाल तो ठीक हम लोग कितना ही करेंगे, right? Because the PYQ I've given it to you as it is. But ग्रामर ठीक कर सकते हैं हम लोग. Please try this out. I think this is very doable. Like 30 सेकंड वाला चीज है. मुझे लग रहा है आप लोग ऑलरेडी आंसर दे चुके हो, मैं जितनी कहानी सुना रहा था अभी तक. हाँ, थैंक्स अनुज, वेरी काइंड ऑफ यू टू से सो. हम लोग सब चीज फ्री में करते हैं इसीलिए. शालिनी, श्रेया, निगम, तीर्थराज, राधिका, पंपा, विनय वेलकम ब्रो. संदेश, सलोनी, तेज हो यार तुम लोग. चैट जीपीटी साहब. First three options are the same. Oh my gosh, what is this? Yes, first three options are the same. I was wondering कुछ गड़बड़ी होगी. Oh my god guys, I was wondering इतनी जल्दी कैसे किया. Yeah, thank you. I don't know how that got past the check, but as my friend was saying, boss you teach really good chemistry. गड़बड़ हो गया content में. Sorry for that. Oh my god guys. बाकी ऑप्शंस क्या है? बाकी ऑप्शन में ढूंढ के अभी डाल देते हैं. छोड़ो, खैर यू फिगर्ड इट आउट एनीवे. लेट्स मूव ऑन. Funny. Hold on. I'm just trying to get back to this guy right here. Okay, cool. इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है. Since all of you have figured it out, let's move on to the next question. Cancelled. This question is cancelled officially. चलो, good. We have time for one more question. अगला वाला इंटरेस्टिंग है, इसको करते हैं. ठीक है. Oh my gosh guys, thank you. I think copy pasting में जल्दी होगी.
The funny thing is, I changed all the other slides. पहली slide में जो नहीं बदला था. Dummy option say, so I thought type them later and I missed out anyway. ठीक है, छोड़ो. What is the equivalent mass of HCl in the given reaction? 2 KMnO4 give plus 16 HCl gives this and this. Interesting सवाल है. ध्यान से करना. This one I really like. Bonus question. Cancelled question. निगम. Yeah, let's try this out. I was wondering इतनी जल्दी कैसे कर लिया तुम लोगों ने? But good job, I guess. Self-eliminated. When you use a cheat code in a video game, I don't know if you played these games. Bethesda makes games like Skyrim or of late Starfield, where you can like auto-persuade people, like use a cheat code. That's what it was. It just eliminated all the other options by making them same. Anyway. तीर्थराज तो बहुत सीरियसली सवाल पूछने लगा. नीट में अगर सेम नहीं यार, नीट ऐसा नहीं करेगा. तीर्थराज डोंट वरी. इधर उधर वन मैन आर्मी नहीं होगा ना. लाइक मैं यहाँ पे सवाल खुद ही बना रहा हूँ, तुमको खुद ही दे रहा हूँ. सो वहां पे यू विल हैव लाइक more than one person making questions and also giving you them. So human error वहां से eliminate होने के chances ज्यादा अच्छा है. Yeah, I know, right? Yes. Let's do this question. ये भी same idea है. Equivalent mass का definition क्या है? I'll give you that. What is equivalent mass? The mass that reacts with 1 mole of electrons. Same चीज मैं आपको equivalent से कौन सा बता रहा था? N factor बता रहा था, right? N factor क्या है कि एक मोल के साथ कितने electrons react कर रहे हैं. Equivalent mass क्या है? The mass that reacts with 1 mole of electrons. Now, keeping this in mind, try this question out. It's an interesting question. Could get a little tricky, but try it out. Wow, Nigam. Baap re. Itni jaldi. Very impressive, Nigam. Have you solved this question before? If not, great. If yes, ठीक है, बहुत अच्छा है. कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. Please try this one out. Yeah, Saloni, definitely. There are so many of you writing this question. I don't think that's ever going to happen in NEET. Yeah. Yeah, let's try this one out. इसको कैसे करें? See, तुक्का. संदेश भाई साहब से तुक्का. तुक्का भी कभी कभी चल जाता है. Let's call it an educated तुक्का. Educated guess बोलते हैं ना अंग्रेजी में. Educated guess लो तब आप guess कर सकते हो कि C होगा. But actually solve कैसे करें? I'll tell you how to do it. It's a good educated guess actually. I would not lie to you. It's a very good educated guess because looking at the other options, it looks like yeah bro यही होगा. Hold on. Let me hide that question from the notes ताकि notes में ये सवाल फिर से आपको ना आए जिसमें जो options थे. I've done that. Now back to this one. See, says medics. Shivam bhai sahab says B. Where is this? Shivam says B. Okay. What? अरे हाउस बेचारी सलोनी गोट चेंज द स्पेलिंग ऑफ योर नेम ब्रो. एडिट ऑप्शन नहीं है यूट्यूब में. n factors 10/16 says निगम. थैंक यू निगम. लवली. आई लाइक इट. मतलब निगम एक्चुअली सॉल्व दिस वन. तुक्का नहीं था निगम का. कैप्टन लकी says A. कैप्टन लकी इतने लकी नहीं है आप इस सवाल के साथ. पंपा also says A. Okay. विनय says C. Can you walk me through what you're going to to tell me that it's m/1? यहाँ पे हो क्या रहा है? This is -1 और यहाँ पे है 0. But this is weird. यहाँ पे भी -1 है, यहाँ पे भी -1 है. What? मतलब इसको करें कैसे? यहाँ +7 है और यहाँ पे +2 है. How do you solve this question, guys? Somebody said 10/16. ये कैसे करें 10/16? कैसे? How do you get to 10/16? Why do you get to 10/16? थोड़ा बताओगे? Okay, so if I were to write it down, I'd say MnO4 minus gives me Mn2 plus. And I would do Cl minus gives me Cl2. Right? This is what I would write. ये लिखूंगा. अब 2 हो गया यहाँ पे. ठीक है, 2 हो गया. इसका क्या हो गया? प्लस 4H2O लिख देते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 है, इधर कर दिया. ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करो आप लोगों के साथ ही. एंड इसमें है 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो ये हो जाएगा × 5, ये हो जाएगा × 2. बट हमने H+ तो ऐड किया नहीं, तो चलो H+ भी ऐड कर देते हैं. कितना H+ ऐड करेंगे? यहाँ पे चार्ज है +2, यहाँ पे है -4, तो 6 होगा. नहीं, होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ी हुई इधर. 2+ इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में एक माइनस है, तो 3H+ होगा सिर्फ. 3H+ डज नॉट मेक सेंस. व्हाट टू डू नाउ? 8H+ ऐड करना ही पड़ेगा हम लोग को. ये 5 इलेक्ट्रॉन हम लोग इधर इस तरफ ऐड कर रहे हैं, रिमेंबर, +5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. तो द टोटल चार्ज हियर नाउ इज -6.
+2, हाँ हो गया। देखो लेफ्ट में +2 चार्ज, राइट में +2 चार्ज, ठीक है। नाउ दिस रिएक्शन सीम्स बैलेंस्ड, ठीक है, 8H प्लस एंड दिस थिंग। नाउ नाउ लुक एट दिस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये इसको अगर आप ऐड करोगे यू विल गेट 8H प्लस 8, you will get 16H plus 2MnO4 minus plus 10Cl minus, that's the LHS. RHS में होगा आपका 2Mn2 plus 8H2O plus 5Cl2। अब ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है, जो मैंने जल्दी से इसको किया, ऊपर वाला और इसमें क्या फर्क है? ऊपर वाला मतलब भगवान जी नहीं, आई मीन ये ऊपर वाली इक्वेशन, ठीक है। ये है स्केलेटल इक्वेशन, ओके, और ये है स्पेक्टेटर आयंस के साथ। ये सब बात दिमाग में बढ़ रही है या फिर सर के ऊपर जा रही है? समझ रहे हैं या नहीं? ऑल गुड? डिड यू फॉलो? ये सब जो मैंने किया ये सब जल्दी कर लिया? इज दिस ओके गाइस? कैन यू जस्ट लाइक गिव मी अ थम्स अप इफ ऑल दिस इज ओके? जो मैंने ऊपर किया है, इज दिस ऑल राइट? आई नो आई वेंट इनटू अ जोन, आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग दिस माय सेल्फ विदाउट चेकिंग विद यू कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लीज मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं। इज दिस ओके? सो यहां पे हो रहा है रिडक्शन, यहां पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ओ ये सवाल पढ़ा है नहीं संदेश? ओ संदेश, डोंट वरी अबाउट इट। संदेश, गो टू द डिस्क्रिप्शन, आई हैव टॉट दिस वेरी नाइसली जस्ट 4 सेशंस, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको पढ़ के आइए। ओके, हाफ रिएक्शन, ऑलराइट, गुड गुड कूल ग्रेट। भाटी सीम्स टू बी हैविंग अ स्ट्रोक। भाटी सब ठीक है? क्लियर? ओके गुड गुड, चलो ठीक है। अब ये, अब नाउ आई हैव टू, ये स्केलेटल इक्वेशन को यहां पे ले जाने के लिए काउंटर आयंस ऐड करने पड़ेंगे। काउंटर आयंस कैसे ऐड करें हम लोग? इन दोनों को आप लोग ऐड अप करो। इफ यू ऐड बोथ ऑफ दीज अप यू गेट 10HCl प्लस 6H प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहां पे आपको मिलता है ये। सो नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, व्हाट हैपेंस टू दिस 6, ये H प्लस कहां से आता है? ये Cl से ही आ रहा है। सो आई हैव प्लस 6Cl माइनस यहां पे, दैट इज एक्स्ट्रा। और वही 6Cl माइनस इधर भी आ जाएंगे। कैसे? 6 में से 4 जाएंगे यहां पे, ओके, कंबाइनिंग विद दिस, ओके, और बाकी कहां? प्लस 2Cl माइनस मोर ओवर हियर, ठीक है। सो देखो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज यू गेट 16HCl, बट 16 में से सिर्फ 10 ही का रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव Cl2। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये सब लिखने का पॉइंट क्या था? व्हाट इज द एंड गोल? यू स्टार्ट विद 16 मोल, बट उसमें से सिर्फ 5 Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ओके, बट यू डोंट नो विच वंस। अभी कौन सा क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा नहीं हुआ, वी डू नॉट नो। इसीलिए हम लोग सब साथ में लेते हैं। दैट्स व्हाई somebody said 10/16, इसलिए वो 10/16 होता है। तो 16 मोल reacts with 10 मोल of electrons, 1 मोल reacts with 5/8 मोल of electrons, ठीक है, कूल, मतलब 10/16 which is this thing। and the definition of n factor क्या है? n factor का definition is this right here, right, mass by n factor। so उल्टा हो जाता है and it is 8m/5 which is the answer। This is a long way of doing it। आपने तुक्का लगाया, बहुत अच्छा लगाया, तुक्का जिसने लगाया बहुत अच्छा तुक्का लगाया, बट ये क्वेश्चन थोड़ा भारी था। अगर मैं आपको और अजीब से ऑप्शन देता देन मे बी यू वुड गेट स्टक अप। बट डिड यू फॉलो व्हाट आई, व्हाई आई डिड, ये पूरा कहानी मैंने क्यों की, व्हाई डिड आई गो एंड डू दिस थिंग टू शो यू दैट वेयर डिड दीस नंबर्स कम फ्रॉम, ये कैसे हुआ। The thing is, I don't know which of these chloride ions are getting oxidized and which of them are remaining as it is. इसलिए I'm taking all of them, 16Cl, 16HCl, right, 16 itself, and dividing by 10। ठीक है, cool, आगे बढ़ा जाए। या ट्रिकी क्वेश्चन, बट ऑप्शन आसान थे इसलिए आपने मार्क कर दिया जल्दी से। ऑप्शन आसान थे, अगर मैं ऑप्शन आपको थोड़ा ट्रिप करवाता तो भाई दिमाग खराब हो जाता। बट ऑप्शन देखिए, गेस कर सकते हो, जिसने भी किया बहुत अच्छा काम किया, एजुकेटेड गेस किया, बहुत अच्छा काम किया, ओके। ग्वालियर, अनुज जी मेरे खाने का इंतजाम कर लीजिए, मैं अभी ग्वालियर आ जाऊंगा। सी माय मेन थिंग इन लाइफ इज गेटिंग फूड विदाउट अनियन एंड गार्लिक। आई फॉलो द होल हरे कृष्ण थिंग। सो जहां मुझे खाना मिलेगा, आई एम विलिंग टू गो एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिना प्याज लहसुन खाना मुझे दे दो, आई विल कम ब्रो, आई एम दैट इजी। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। डू वी हैव सम मोर टाइम?
अरे बाप रे, वी आर आउट ऑफ टाइम, बट आई थिंक सिंस आपको मजा आ रहा है, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, आई विल गिव यू वन एज होमवर्क। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। रॉन्ग हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स ओके। ऑलराइट अनुज, ये वाला ट्राई करो। What will be the value of x, y, and z in the following equation? xi2 plus yoh minus gives you io3 minus plus zi minus plus 3h2o. Let's do this balancing. जो सबसे मजेदार चीज है वो मैंने लास्ट में रखा आप लोगों के लिए। I know you like doing balancing, मुझे तो बहुत मजा आता है बैलेंस में। You saw that in the last question itself, बैलेंस में मजा आता ही है। इसको ट्राई करते हैं। या क्वेश्चन टफ और आंसर इजी होता है कभी कभी लाइफ में। या लेट्स ट्राई दिस। More than a foodie, it's like a way of life, ChatGPT. वो हम बहुत जरूरी, that's like something that I really want to do, that's the main thing. अरे वाह अनुज, look at this, I like it, हो जाएगा हिसाब, सही है भाई, सही है, सही है, सही है। I mostly order food बाहर से, तो इसलिए एक constraint है, so to speak, कुछ variables होते हैं, कुछ constraints हैं, this is like a fixed thing. श्रेया says D, को टाइम पास नहीं करना, उसको जवाब देना है। Good job श्रेया, what about everybody else? Y3 होना चाहिए, Y3 होना चाहिए, ओके ओके ओके, ऑलराइट। श्रेया इज वेरी कॉन्फिडेंट Y3 होना चाहिए, ओके कूल कूल कूल। चलो देखो, व्हाट आई वांट यू टू सी इज दिस गाय, दे हैव फिक्स्ड कंस्ट्रेंट, मैं बताया था ना कंस्ट्रेंट की कहानी से, दे हैव फिक्स्ड io3 माइनस का कोएफिशिएंट टू बी इक्वल टू 1। विल टेक 5 मोर मिनट्स, अभी दो ऑलरेडी बच गए, विल टेक 5 मोर मिनट्स। इसकी और तो आपकी कोई क्लास है नहीं सैटरडे को, तो विल टेक 5 मिनट्स इस सवाल को करते हैं। जीपीडी ऑल्सो सेज डी। अच्छा, जो भी आप आंसर बोल रहे हो ना, ये नंबर डाल के देखो। ओके, लेट मी टेल यू हाउ टू डू दिस। पुट द नंबर्स बैक इन हियर एंड सी इफ इट एक्चुअली गेट्स बैलेंस। यही तो करना है ना, करके देखो। पुट दीज नंबर्स बैक देयर। आपने कुछ कैलकुलेशन किया, बट चेक करो, प्लीज चेक योर आंसर। आई एम नॉट सेइंग आपने सही किया गलत किया है, बट प्लीज चेक योर आंसर। ओके, कुछ और लोग बोल रहे हैं डी। ओके, शिवम भाई साहब बोल रहे हैं सी। विनय, संदेश, तीर्थरा, चैट जीपीटी, श्रेया आर ऑल सेइंग डी, बट शिवम अकेला बोल रहा है सी। शिवम, डू यू वांट टू कन्विंस योर फ्रेंड्स और डू योर फ्रेंड्स वांट टू कन्विंस शिवम? इस टाइप का क्वेश्चन नीट 2023 में आया था। अच्छा, लेट अस सी, वेरी इंटरेस्टिंग। चैप्टर का नाम क्या? रेडॉक्स रिएक्शंस। जस्ट चेकिंग ऑन आवर डेटाबेस वेरी क्विकली। आया था क्या? खैर ये वाला करिए। नीट 2023 में तो सवाल मैंने, हाँ बिल्कुल सही आया था, CR2072 माइनस वाला आया था। SO3, बाप रे, हाँ भाई प्रॉपर करने वाला, वो तो भाई जेई वाला टाइप सवाल ही था। ठीक है, सही है, बट आई थिंक एनसीईआरटी से आया था। एनसीईआरटी में तो इतनी ढेर सारी इक्वेशंस है, इतनी ढेर सारी इक्वेशंस थी, यू कांट मग देम ऑल, यू हैव टू डू इट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो कर लो, आराम से कर लो फर्स्ट प्रिंसिपल। आई थिंक दिस वन इज डूएबल। Saloni is saying C. Okay. Hey, what's up, Fazan? Can you try it out? Radhika is also confident about C. Nigam भी बोल रहे हैं C. अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं D और कुछ लोग बोल रहे हैं C. Oh, Sandesh wants to change their answer from D to C. लगता है कुछ लोग अपना आंसर बदल रहे हैं। अच्छा सलोनी, आपने 23 में दिया था। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, चलो लेट अस, तीसरा आपने दिया था, चलिए बहुत अच्छी बात है। ओके, let me write down the oxidation numbers. ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा हूं, बस ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहा हूं। शिवम, शिवम आपने आंसर बदला क्या? नहीं, शिवम इज स्टिल सेइंग C. शिवम वाज द फर्स्ट वन टू से C. He is agreeing with this. ठीक है, खैर ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां लिख देते हैं। इसका 0 +5 -1, थम्स अप इज फाइन। बट यहां हो क्या रहा है? अरे बाप रे, ये हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन। जिस चीज से मैं आपको डरा रहा था वही चीज यहां पे आ गई, डिस्प्रपोर्शनेशन। किसी को संदेश, आप बोल रहे थे ना कि डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं मालूम है, पर आपने आंसर भी सही कर दिया संदेश। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर संदेश। शुरू में बोले थे भाई उसको डिस्प्रपोर्शन आता नहीं है, एंड दे हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये डिस्प्रपोर्शनेशन ही तो है, और क्या है, राइट? 0 से 1 ऊपर 1 नीचे। एवरीबडी हु इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट डिस्प्रपोर्शनेशन हैज स्टिल गॉट द आंसर, इज ब्रिलियंट। यू वांट चेंज द आंसर टू C? यस यस, 300 मार्क्स। ओके ओके सलोनी, ऑलराइट, डोंट वरी अबाउट इट। मार्क्स आगे पीछे होते रहते हैं, द मेन थिंग इज टू कीप ट्राइंग। और आप लोग बहुत दृढ़ता से आप लोग जो है पिछले साल पढ़ाई की है, यू विल बी ऑलराइट। प्लीज ट्राई योर बेस्ट। सो दो चीजें हो रही हैं,
I2 is giving me I3 minus, IO3 minus and I minus. You will see that मैंने बैलेंस करने के लिए दोनों के पीछे यहाँ पे 2 लिख दिया है, राइट, बिकॉज 2 आइटम्स एंड ऑल ऑफ दैट. जस्ट विल फिक्स इट, डोंट वरी. अभी हम लोग लिख रहे हैं, एंड में हम लोग देख लेंगे जो करना कर लेंगे. बैलेंस कैसे करें. अब इसमें है ये, दिस adds 5 electrons on this side per atom, right, because oxidation number क्या है 0 2 plus 5, इसका 0 2 minus 1. तो ये भाई साहब हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो इसको हमको मल्टीप्लाई करने का 5 से. लेट मी राइट दिस ऑन प्रॉपर्ली. 10 इलेक्ट्रॉन दिस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन दिस साइड. ओके, मल्टीप्लाई दिस सेकंड गाय इनटू 2. ओ बिफोर दैट होल्ड ऑन, सबसे जरूरी चीज, इसके बाद I'm going to add OH minus ions to counter this negative guy and this. So there are total of 12 negative charge, right? उसको मैं हटाना चाहता हूँ, तो इसलिए I have added 12 OH minus. As soon as I add 12 OH minus, I also add 6 water molecules. यहाँ पे तो कुछ झंझट नहीं है. This is okay. After that, I'm going to multiply this guy by 5 and we are more or less done. So let's add it up. Now, after we add it up, things get a little complicated or also a little easy actually. यहाँ पे you get 6. इसीलिए कुछ लोगों ने D बोला 6. But be careful, I told you, IO3 minus का coefficient है 1, which means you have to divide everything by 2. If you divide everything by 2, आंसर हो जाता है आधा. तो जल्दी में मत करिए. जिन लोगों ने भी D बोला, I feel you solved it, you actually solved it, but जल्दी में आपने D मार्क कर दिया. So please ध्यान से करिए चीजें. Once you divide this by 2, right, you get this, and let's just check. X is 3, Y is 6, and Z is 5. Exactly. C is the right answer. Good job. Good job. ChatGPT ये क्या बोला? Question number 87, booklet number F3. What? What does that mean, bro? This is just a reaction, a disproportionation reaction. ये कहीं पे भी हो सकता है. अमन, are you doing okay? What do you mean by A? अमन, मैंने अभी बताया पूरा देर से कि C, आप A क्यों बोल रहे हो? ओ अच्छा, ए में 3 5 6 लिखा है. नहीं यार, 3 6 5, दैट इज द आंसर. ठीक है, कूल. चलो, we'll call it a day with this. Thank you so much. अमन भाई, I hope you're all right. The answer is clearly not A, it is C. तीर्थराज भी बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 E6. Are you guys playing chess with me? What is E6? Like knight to E6. What are you guys doing? I don't know what you're talking about. F3, queen takes knight. Anyway, ठीक है, चलो. Thank you so much for your time. Here is, all right, sorry, I'll let you guys go. Have fun. एक और सवाल है, चलो ठीक है, होमवर्क कर लो. Do this one for homework. I'll see you around on अगली बार हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को to finish up to wrap up this fast track वाला business, P block 1. That's going to be a chill thing to do. And आगे क्या करना है, leave suggestions on this comment. यहाँ पे इस वीडियो के जो मेन कमेंट्स है वहां पे सजेशन जो आगे करना है. कुछ लोग बोल रहे हैं एनसीईआरटी करना है, कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ और करना है. February onwards we'll plan that. बीच में we'll do some छोटे मोटे एक दो फिलर सेशंस, क्योंकि हम लोग को जेई का भी थोड़ा बहुत एफर्ट वहां पे लगाना पड़ेगा. आपके जेई के 200 एग्जाम है 20 दिन में. सो आई विल स्पेंड अ लिटिल बिट टाइम ऑन दैट. माय टाइमिंग्स में चेंज नेक्स्ट वीक एंड द वीक आफ्टर बिकॉज ऑफ जेई का एग्जाम. सो बट या बीच में we'll keep continuing our sessions. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन. एज ऑलवेज, this is, wait, hold on. This is a link to all of my sessions that I work on and will work on. That's all over here. Please share this with your friends who may find this useful. I'll give you the notes of this session on Telegram. ठीक है, मिलते हैं. Bye bye. Thank you so much for joining me. Have a good one. Have a good weekend. Oh, question paper of NEET. अच्छा, वो NEET में कहाँ आया था वो आप लोग बोल रहे दिस टाइप का. अच्छा, ये वाला. ओके, समझ में आया. क्वेश्चन नंबर ये वो अच्छा समझ में. ठीक है. All right, I'm on no tension. Take care. All right, bye. Make sure to get some physical activity. घूम टहल के आओ तुम लोग, बहुत जरूरी वीकेंड में ये करना. Bye.